Good morning. Welcome to the class. So our today's topic is a story Achilles. That is a story in the English book Tulip series of class 8th. So this is a story about a Greek hero. He was a very handsome Greek hero. ठीक है. तो students, according to Greek mythology, when Achilles was born, his mother held him by his heel and dipped him in the river Styx so that he could live forever. ठीक है. तो as a result, his heel was the only part of his body which was not washed by the holy water. Years later, after surviving many battles, Achilles finally died after an arrow struck him on his heel. So this is also a source of expression, Achilles heel, which means having a serious weakness. ओके तो इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने लिया हुआ है. तो अब आज जो बाकी की स्टोरी है आज वो हम पढ़ेंगे. आगे देखते हैं कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. आगे आगे स्टोरी में क्या क्या होता है, कैसे वो इतने साल तक इतने बैटल्स लड़ता है, इतनी लड़ाइयाँ लड़ता है, तो उसके आगे वो क्या करता है, कैसे वो इतना टाइम तक सरवाइव करता है. बहुत सारे बैटल्स उसने जीते हैं. बहुत सारे बैटल्स जीतने के बाद तो कैसे फाइनली जो एक एरो होता है वो उसकी हील में स्ट्रक करता है और वो मर जाता है. क्योंकि ये एक ग्रीक मिथोलॉजी में, ये मैंने आपको बोल दिया पहले कि वो माना जाता था कि अगर किसी इंसान को रिवर स्टिक्स में उसको डिप किया जाए उसकी पूरी बॉडी को, तो वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है हमेशा के लिए. ही लिव्स फॉर एवर. तो उसकी माँ ने भी ऐसा किया, लेकिन उसकी बॉडी का एक पार्ट जो हील था वो बाहर रह गया था, तो उस वजह से वो मर गया. उसकी डेथ होगी क्योंकि जो एरो था वो उसके हील में ही स्ट्रक हुआ. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. कहता है, When he was Roger, my pet dog, and me, the Rosal Beetleman stopped, took off his ridiculous hat, and swept us a low bow. He smiled at us, put on his hat again, raised his hand, and waggled his long, bony fingers at me. I asked him if he had been to some fiesta. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips, and played a little lilting tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back the way he had come. He smiled and rubbed his forefingers and thumb together, expressing that he wanted money. I suddenly realized that he must be unable to speak, so standing in the middle of the road, I carried on a conversation with him, and he replied with a clever pantomime. I asked what the rose beetles were for. He held his hand out to denote small boys, took one of the lengths of cotton from which a beetle hung, and whirled it rapidly around his head. Immediately the insect came to life and started on its planet-like circling. Pointing up at the sky, he stretched his arms out and gave a deep nasal buzzing. Then he whirled his beetles and round his head so that they all started to buzz quickly. Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off to sing in his curious voice. They were not clear words, but a series of strange grunting. Presently, he stuffed his flute into his bulging pocket and then swung a small sack off his shoulder. He undid it, and to my astonishment, half a dozen tortoises tumbled out into the dusty road. Their shells had been polished with oil, and he had decorated their front legs with little red bows. Slowly the tortoises unpacked their hands and legs from their gleaming shells and set off down the road without enthusiasm. I watched them, fascinated. The one that particularly took my fancy was small, with a shell the size of a teacup. Its seemed sprightlier than the others. Its eyes were bright and its walk was alert. I sat looking at it for a long time. I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm. The fact I had no money on me did not worry me. I would simply tell the man to call at the villa for payment. It never occurred to me that he might not trust me.
तो आगे क्या होता है, व्हेन ही, जब उसने वो कहता है कि जब उसने मेरे कुत्ते को देखा जिसका नाम रॉजर था, एंड मीन रोज बीटल मैन जो था वो स्टॉप हो गया, ही स्टॉप्ड, ही टुक ऑफ हिज हैट एंड ही स्वेप्ट अस स्लो एंड बो, ही स्माइल्ड एट अस। तो उसने उनको हल्की सी स्माइल दी और ऐसे अपनी हैट नीचे, जब कोई अपनी हैट उतार के नहीं ऐसे किसी को ग्रीट करता है, तो उसने वैसे किया। उसके बाद उसने हल्की सी स्माइल दी और उसने दोबारा अपनी वो जो हैट थी तो वो उसने दोबारा से लगा ली और उसने अपने हाथ क्या किए, ही रेज हिज हेड एंड हैंड उसने अपने रेज के एंड वेगल्ड हिज लॉन्ग, वैगल का मतलब है टू क्विकली अप एंड डाउन, ऐसे करने लगा वो। तो एंड उसने उसकी वो जो बूनी फिंगर्स थी पॉइंटेड एट मी, ऐसे ना वो पतली पतली लंबी लंबी उंगलियां। आई आस्क्ड हिम ही हैड बीन टू सम फीस्टा, तो मैंने उससे पूछा कि अब फीस्टा का मतलब है कोई पब्लिक सेलिब्रेशन, कोई गैदरिंग, कोई फेस्टिवल है ना, जो स्पेन में अक्सर एक ऐसा फेस्टिवल होता है या लैटिन अमेरिका में। तो उसने उससे कहा कि आप किसी फेस्टा में थे, तो ही नॉडेड हिज हेड विद दिस, तो उसने अपना सर ऐसे हिलाया, हाँ मैं गया था। तो उसने अपनी पाइप उठाई, अपने लिप्स के पास ली और उसने वो फिर से वो लिल्टिंग ट्यून क्या करने लगा, उस पर बजाने। लिल्टिंग का मतलब है जंटल, बहुत प्यारी सी, मज़ेदार और प्लेजेंट। हाँ, तो वो दोबारा से वो उसने स्माइल किया, उसने अपने 4 फिंगर्स और थंब को दोबारा क्या किया, रब किया, दैट ऐसे ऐसे करके, जब जैसे नहीं हम ऐसे करते हैं हाथ रब करते कि हमें क्या चाहिए, मनी, ही वांट, ऐसा लगा कि उसे पैसे चाहिए। तो आई सडनली रियलाइज दैट ही मस्ट वेट, तो मुझे लगा कि ये बोल नहीं सकता है। तो सो वो ही वाज स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ द रोड। तो मेरी वो कन्वर्सेशन जो थी उसके साथ जारी रही। तो आई आस्क्ड हिम विद द रोज बीटल्स वेयर फॉर, तो मैंने पूछा ये जो रोज बीटल्स हैं व्हाट आर दे फॉर, ये किसके लिए जो तुम ये लेके जा रहे हो। तो इमीडिएटली एक इंसेक्ट उससे बाहर आया और उसने क्या किया, एंड स्टार्टेड ऑन इट्स प्लैनेट, और ऐसे घूमने लग गया जैसे उसको नई लाइफ मिल गई। तो उसने ऐसे पॉइंट किया स्काई की तरफ एंड स्ट्रेचेस हिज आर्म्स आउट एंड गिव अ डीप नेजल बजिंग, ऐसे ना आवाज़ निकाली नाक से। तो उसने अपने देन ही व्हील्ड हिज बीटल्स राउंड, ऐसे उनको ऐसे घुमाने लगा अपने सर के आसपास, सो दैट दे आर स्टार्टेड, ताकि वो भी बज करना शुरू, उन्होंने वो आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। तो अब मैं उसकी वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था उसमें उससे एग्जॉस्ट हो गया, थक गया था। तो ही सैट डाउन, प्लेड इस, तो वो भी नीचे बैठ गया। उसने एक शॉर्ट ट्यून प्ले किया कि इस पे अपने फ्लूट पे, तो वो क्या करने लगा, गाने लगा अपनी उस क्यूरियस आवाज़ में। तो जो वो गा रहा था उसके जो वर्ड्स थे वो उतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ अजीब कुछ ऐसी चीज़ें वो बोल रहा था, स्ट्रेंज था। प्रेजेंटली ही स्टफ्ड हिज फ्लूट इनटू हिज बल्जिंग पॉकेट एंड देन swung a small sack off his shoulder. He undid it and to my astonishment have a dozen tortoise tumbler. तो ऐसा इतने सारे ये बजाते बजाते बहुत सारे क्या थे, टॉर्टाइज कछुए उसके नीचे, दे वर टम्बलिंग डाउन, तो वो नीचे गिर रहे थे कहाँ पे, उस रोड पे। उनके जो शेल्स थे वो बिल्कुल पॉलिश किए हुए थे ऑयल से, और उनके उनके जो फ्रंट लेग्स थे उनको डेकोरेट किया था लिटिल रेड बोज से, उसने उनको डेकोरेट किया हुआ था, सजाया हुआ था। सो स्लोली जितने भी उठा वो दे अनपैक देयर हेड्स एंड लेग्स फ्रॉम देयर ग्लीमिंग, उन शेल से वो बाहर निकले एंड सेट ऑफ डाउन एंड रोड विदाउट इन, वो तो जैसा लग रहा था उनमें वो उतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे। मैं उनको देख रहा था, आई वॉच्ड देम, आई गॉट फैसिनेटेड ना, कोई ऐसी चीज़ देख के ना वैसे फैसिनेट हो जाना है ना, कुछ ऐसा देखना जिससे मत अजीब, जिससे वो जो देखने में अच्छा लगे। ऐसा लग रहा था दैट वन पर्टिकुलर टुक माई फैंसी वाज स्मॉल विद अ शेल द साइज ऑफ अ टी कप, इट सीम्स स्प्राइटलियर देन, वो दूसरों से चमकदार लग रहे थे। इट्स आइज वेर ब्राइट एंड इट्स वॉक वाज अलर्ट। आई सैट लुकिंग एट इट, मैं उसके बहुत देर तक देख रहा था। I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm. The fact that I had no money on me did not worry me. I would simply tell the man to call at the villa for pay, क्योंकि उस टाइम उसके पास कोई पैसे नहीं थे, तो उसने उसको बोला कि तुम मुझे कॉल करना विला पे, किसके लिए, पेमेंट के लिए। I never occurred to me that he might not, ऐसा लगा ही नहीं कि वो मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कि उसने मुझे ट्रस्ट नहीं किया है। The fact that I was English was sufficient for the islander had a love and respect for the English, और जो आइलैंडर्स थे उनको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मैन जो होते थे वहाँ पे, उनकी काफ़ी ज़्यादा क्या होती थी, रिस्पेक्ट होती थी। इस वजह से उसने उसकी बात का क्या कर दिया, यकीन कर लिया। उनसे कहा कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं इस वक्त, तो आप मेरे विला पे आए, तो आप वहाँ से आकर अपनी पेमेंट ले लें। तो
जो यहाँ पे बोर्ड पे जो मैंने ये वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो आपकी समझ में नहीं आते, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जैसे वियर्ड है, मतलब वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, कोई ऐसी चीज़ है ना। रिपलिंग, मेकिंग ए साउंड ऑफ वाटर, flowing quietly, floppy, soft and not able to maintain a firm shape, dangle to hang loosely, lilting मतलब gentle और pleasant sound, waggle to move quickly up and down, feast type, public celebration Spain और Latin America, regal का मतलब है रॉयल और सुप्रीम। तो आई होप आप ये आपको अच्छे से समझ आ रही होगी स्टोरी। तो आप ये वर्ड मीनिंग्स जो है तो प्लीज़ आप ये अपनी इस पे नोटबुक पे डाउनलोड कर ये नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे जाके आपके काम आएंगे, तो आप अच्छे से लेसन भी समझ सकेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह इसका जो थर्ड हाफ है, आगे वाला जो हिस्सा है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।